VK Agnihotri ji, welcome sir for his welcome at the initial address. Namaskar. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji, and my regards to all the great dignitaries who have joined our today's webinar, which is 425th. Luckily, we have got two guest speakers. The one is the senior one, and the other one is the going to be senior. So whenever we talk on Charak Sangita or Maharshi Charak, you see itself, it gives a lot of excitement. Excitement in the sense that whatever we could know by now from our teachers, respected teachers, out of our experience, out of our principles, theoretical, treatment part, and all the experience. Apart from that, the hidden knowledge in the form of sutras and also projected by Acharya Chakrapani and the followers, redactors and other commentators, it is always new to have more and more information based on Charak Sangita. So the formula or the concept or the idea for celebrating Maharshi Charak Jayanti, that too for a 15 days long fortnight program, is simply having the purpose to have more and more information and more knowledge from that sector which has not been either touched or highlighted or not in much more practice, to be simplified and to make its a practical aspect. Moreover, start with a newer methodology for the students so that they, whether they are not coming from the Sanskrit background, must understand the hidden theme and principles of Charak Sangita for their practical purpose and their practice, and also be fulfilled with the knowledge. So the co-travelers or the juniors of the students must get more and more simplified information, though it is coming from Nyaya, Vaisheshik, principles, Shaddarshan, etc., etc. But what may be the practical use of it in terms of the prevention of health as well as the curative part of for the diseases. So with this initial terms, I think our learned speakers have joined. So we welcome them, especially Dr. C.P. Sharma sir, who has always been contributing to our webinar and जिनका सहयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके अनुभव के आधार पर, उनके प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, उनके चिकित्सीय अनुभव के आधार पर इतना सहज हम लोगों को सुलभ रहता है कि हम हमेशा इस बात के इंतजार में ही रहते हैं कि आज वो क्या कुछ नया देने वाले हैं। तो इसी जिज्ञासा और विश्वास के साथ में हम अपने आज के गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। चूंकि हमारे सीपी शर्मा साहब भी हमारे मध्य भारत से हैं और हमारे अरविंद जी तो पीलीभीत से ही हैं, तो दोनों हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र से हैं। तो हमने कहा चलो दोनों ही भाषाओं में उनको हम इनवाइट भी कर लें। तो हम पवन शर्मा जी को हम प्लेटफॉर्म वापस देते हैं अपने गेस्ट स्पीकर्स को परंपरागत तरीके से इनवाइट करने के लिए। तो ओवर टू पवन शर्मा जी। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी शर्मा जी को इनवाइट करता हूं। ही वाज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ISM आयुष इन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, वेरी सीनियर डिग्निटरी। वेलकम सर। डॉक्टर सीपी शर्मा जी, आपका स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। ओम शिवम हरिम विधातारम तत्पत्नी तान सुतान तान गुरुन नत्वा समस्त प्रत्ययुः शांताय मंगलाय च
त्रय विभेदेन मूत्रित्रयमुपयुषे त्रयूर्भुवे त्रिनेत्रायत लोकीपते नमः। सोऽयम् आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्। आयुर्वेद अनादि शाश्वत वह चिकित्सा व्यवस्था है जो हमें हमारे देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि और अर्वाचीन आचार्यों की जो ज्ञानमयी गंगा का सैद्धांतिक सह प्रायोगिक व्यवहारिक सह अनुभव परक उच्च स्तरीय चिंतन जो हमारे जीवन जीने की कला की तत्वात्मक बोधनी और मोक्षदायिनी परंपरा के लिए प्रेरित करती है, उसका जो ज्ञान हमें सदगुरुओं के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्यता दीर्घ जीवनीय परिकल्पना के लिए प्रस्फुटित पल्लवित सदगुरुओं के माध्यम से जीव मात्र के कल्याणार्थ सहज सरल चिकित्सकीय व्यवस्थापन हेतु जो प्रभु प्रदत्त विशेष कृपा द्वारा जिसके हम कुछ आंशिक पात्र हैं और पवन जी का जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम अपना क्षणिक आंशिक आयुर्वेद व्यवस्थापनीय ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय जैसा कि आपको पूर्व विदित है बात कलाकली अध्याय। तो अभी बात कलाकली अध्याय पर मैं आने से पहले जरा आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में ले जाऊंगा। जीव सृष्टि कब से कैसे और क्यों उत्पन्न हुई इसके ऊपर वैज्ञानिकों द्वारा विविध तरह से अपने अपने तरीके से वैज्ञानिकीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिए प्रश्नों के, परंतु इस उत्तर की जो वैज्ञानिक परिभाषा अर्थात जीवोत्पत्ति प्रकृति की सृष्टि उत्पत्ति में तो उसको थोड़ा समायोजित करना चाहूंगा। स्वभावमीश्वरम कालम यद्याक्षाम नियतिम तथा परिणामम च मन्यते प्रकृतिम प्रतुदर्शिनः। सर्वप्रथम जो स्वभावतः ईश्वरीय व्यवस्थापन में कालजयी यदिच्छा नियति परिणाम इन्हीं को अपन प्रकृति माने। पवन जी जो हमारी स्लाइड हैं उन स्लाइडों में कोई कर रहा है तो मेरी ये 17वें नंबर की स्लाइड है, लास्ट की है 17वें नंबर। हाँ आपकी स्लाइड चल नहीं रही है जी। हाँ 17वें नंबर पे जाइए और जाइए और जाइए और नीचे जाइए, सबसे लास्ट में चले जाइए, सबसे लास्ट में और लास्ट में और लास्ट में और लास्ट, यही है सर से ही लास्ट। स्वभावमीश्वरम कालम यदाक्षाम नियतिम तथा परिणाम च मन्यते प्रकृति प्रतुदर्शिनी। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जब निर्जीव सृष्टि की उत्पत्ति और सजीव सृष्टि की उत्पत्ति क्या एक साथ हुई? आचार्य कहते हैं नहीं, प्रथमतः निर्जीव सृष्टि आई और इस निर्जीव सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई उसका जो श्रृंखलावत विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, उसके परिणाम स्वरूप सजीव सृष्टि आई। इस सजीव सृष्टि का जो अस्तित्व बना, जो हमारे आयुर्वेदीय शास्त्रीय विवेचन में जो हमें मिलता है उससे इतना निश्चित सत्य है कि प्रथमतः पंच महाभूत बने, क्योंकि पूरा का पूरा सृष्टि सजीव निर्जीव प्रकृति पंच महाभूतों से ही निर्मित है। तो सब पहला कंसेप्ट हमारा आया पंच महाभूत। यही पंच महाभूत
सजीव तत्व बनाने में जब प्रेरित हुए और इस प्रेरणा में पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि के निर्माण में 4.5 करोड़ वर्ष लग गए। इन 4.5 करोड़ वर्ष में निर्जीव सृष्टि का साम्राज्य रहा और जैसे जैसे ये कालखंड काल में आगे गुजरता गया और 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथमतः जीवित कोष बना। यह जो जीवित कोष बना, यह सिद्ध कैसे होता है कि आप कैसे कह सकते हो कि 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित उत्पत्ति हुई? यह हमारी जो जैविक अवशेष है, दीज आर नोन एज फॉसिल्स, उन फॉसिल्स की जो आइसोटोपिक स्टडी हुई उससे सिद्ध होता है। उससे यह सिद्ध हुआ कि हमारा प्रथम जीवित कोष, पहला जीवन, पहली कोशा कब बनी? 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये निर्जीव से सजीव सृष्टि उत्पत्ति में मनीषियों द्वारा जो प्रथमतः केमिकल एवोल्यूशन के बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सबसे पहले प्रथमतः जो निर्जीव में हुआ, सजीव से निर्जीव, केमिकल के पश्चात बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आया और ये दोनों केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को हमारे सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। इस समय समग्र पृथ्वी पर, समग्र सृष्टि में 106 तत्वों की उपलब्धता रही। इन 106 तत्वों में केवल और केवल षोडश विकार, 16 तत्व ऐसे थे जो हमारे दोषों के निर्माण के लिए या सृष्टि के निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इन 16 तत्वों में सिद्धांततः कार्बन, या ये कहें कि पृथ्वी महाभूत का प्राबल्य रहा, इसमें सर्वोपरि पृथ्वी महाभूत रहा। यह कार्बन के यूं तो हजारों संयोग हुए, परंतु केवल और केवल 20 संयोग ही जीवन के लिए आवश्यक सिद्ध हुए। वो 20 संयोग जो 4 फेजेस में कंप्लीट हुए। पहला जो फेज था, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बना, वो न्यूक्लियोटाइड 4 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित यह जीव मात्र, जीवन का आरंभ 4 न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है। जो सिद्धांततः है, ये न्यूक्लियोटाइड्स वास्तव में प्रोटीन है, दीज आर प्रोटीन। तो जो भी ईश्वरेच्छा काल परिणाम के स्वभावतः कुछ वैशिष्ट रासायनिक जो क्रियाएं हुई, उन क्रियाओं में प्रथम जो न्यूक्लियोटाइड बना, वो प्रथम न्यूक्लियोटाइड हमारा जहां जीवन की का शुभारंभ हुआ, जीवन की शुभारंभ। जब ये न्यूक्लियोटाइड कई लाख वर्षों तक ऐसे ही अपने संवर्धन करता रहा, इस बीच में पुनः लाखों वर्ष बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना। ये न्यूक्लियोटाइड जब इसमें भी जीवन की कुछ हलचल दिखाई दी, इसमें जीवन की कुछ हलचल दिखाई दी था, देन फिर एक कुदरतन तृतीय न्यूक्लियोटाइड बना। जब इन तीनों का संयोग हुआ, इन तीनों के संयोग से आदि जीवित कोष बना, जिसमें सेल वाल नहीं थी। वो जीवित कोष, जीवन तो शुरू हो गया, ये नहीं सर, जीवन तो शुरू हो गया, परंतु यह जीवन कैसा था? बिखर जाता था। वो सेल का पूरा द्रवित भाग बिखर जाता था। इस स्थिति में पुनः लाखों वर्ष बाद चौथा न्यूक्लियोटाइड बना, जो उसकी पेरिफेरी बना, उसकी बाउंड्री बना, अर्थात सेल वाल बना। जब ये सेल वाल बन गई, तो इस सेल वाल बनने पर हमारा पंच महाभूतों द्वारा त्रिदोषीय कल्पना ने मूर्त रूप लिया। यह निर्जीव सृष्टि थी, वो कैसी थी? उसमें चैतन्य सुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, परंतु जब वो सजीव हुई तब वो चैतन्य ने अपना कार्य प्रारंभ किया, उसकी क्रियाशीलता बढ़ी। इसको हमारे आयुर्वेद में जो हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रथम न्यूक्लियोटाइड
तिक्त रस प्रधान रहा, जिसमें और आकाश और वायु महाभूत का प्राबल्य रहा। द्वितीय न्यूक्लियोटाइड कटु रस प्रधान रहा, जिसमें वायु और अग्नि महाभूत रहे, जिससे पित्त दोष बना। प्रथम से वात दोष की का जनक रहा। तृतीय जो बना अप और अग्नि से कफ बना, परंतु यहाँ पर कफ कैसा था? द्रवित था। जब इसमें पृथ्वी महाभूत मिला तब ये पृथ्वी महाभूत से ये घनीभूत हो गया। घनीभूत होकर के उसी सराउंडिंग तैयार हो गई और एक पंच महाभूतात्मक जीवित कोष बना। आचार्य हमारे यहाँ कहा गया है पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम। ये हमारा पंच महाभूतों से हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ। दूसरे हमारी जो सैद्धांतिक व्यवस्था आचार्यों ने दी, यथा लोके तथा पिंडे पंच धातुआत्मक चिकित्स्य पुरुष की कल्पना की। आयु की अवधारणा बनाई। आयु की अवधारणा में आपको मालूम ही है शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोग धार जीवितम की जो चतुष्पादीय अवधारणा आई, इसके इर्द गिर्द हमारा पूरा आयुर्वेद और हमारे आयुर्वेद की सिद्धांतों की जैविक, मानसिक, आध्यात्मिक मूल्यों का एकीकरण हुआ। परिणाम स्वरूप मनीषियों द्वारा अद्भुत प्राकृत जीवन जीने की कला का एक समन्वयात्मक विज्ञान प्रस्तुत किया, दैट इज आयुर्वेद। यह आयुर्वेद जिसमें हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्ष आयुर्वेद स उच्यते। स्वलक्षणात् सुख सुखा सुख तो हिताहिते अहितत प्रमाणतस्य यतस्यानाशुणानि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदयस्तोश्च आयुर्वेदा आयुर अस्मिन् विद्यते अनेनेत आयुर्वेद। आयुर्वेद का प्रमाण, अब आयु के प्रमाण को लेकर के आचार्य चरक ने जहाँ अर्थे 10 मामूली अध्याय में थोड़ा सा बताया कि आयु शतायुर्वेद पुरुषः, शतायुर्वेद, शतायु की कल्पना की। ये हमारा आयुर्वेदीय व्यवस्थापन रहा। इसमें जहाँ आचार्यों ने इस व्यवस्थापन को आगे बढ़ाया हुआ सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्मणा सर्वम अस्मिन् शरीरे कुपितः कुपिता शुभा शुभानि कुर्वन्ति प्रकृति भूत्वा भूत्वानि उपचय बल वर्ण प्रसाद आदि अश्मानि प्रकृति विकृति अपन्ना विकार संज्ञान। आचार्य चरक ने कहा सर्व शरीर के संचरण करने वाले ये सर्व शरीर में संचरण करने वाले ये वात पित्त कफ शरीर के किसी भी अवयव विशेष में प्राकृत अवस्था में रखे शुभ कार्यों को संपादित करते हैं, अप्राकृत अवस्था में रह के ये रोगोत्पत्ति करते हैं। परिणाम स्वरूप शुभ और अशुभ लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अब हम बात जिस मेन जो हमारा विषय है, जो आज का टॉपिक है, मैं उस पे आता हूँ। बात कलाकली अध्याय। सर ये चेंज कर दे, थोड़ा चेंज करे इसको। बात कलाकली अध्याय आचार्य चरक ने सूत्र स्थान का जो व्यवस्थापन किया, उसमें सूत्र स्थान में उन्होंने 30 अध्याय रखे। मैं कौन सी स्लाइड चलाऊं साहब, ये कुछ बताएंगे? हाँ, आप वो कलरफुल वाली चला दो फिलहाल, क्योंकि अभी मैं उस पे आऊंगा। वायुष तंत्र यंत्र धर वाली लगा दो भले ही। वायुष तंत्र आप ये अब ये लास्ट वाली है जिसको मैं बाद में समझाऊंगा। वायुष तंत्र यंत्र धर। नेक्स्ट चलो, आप चलो। एक 5 नंबर की है सर, 5 नंबर। यही इससे पहले वाली, इससे पहले, इसके बाद की सर। और ये सामान्य कार्य आ रहे हैं। तो अभी मैं जरा बात कलाकली अध्याय के बारे में ये कहूंगा।
आचार्य चरक ने जो सूत्र स्थान का प्रतिपादन किया, उस सूत्र स्थान में 30 अध्याय रखे। सप्त चतुष्का द्वय संग्रह है, सात चतुष्क बनाए 4-4 के। उनमें 12वां जो अध्याय था वह उसका नाम बात कलाकली अध्याय था। बात की कला और अकला गुण दोषों का विवेचन आचार्य ने किया। अल्प आंशिक रूप से कफ और पित्त का भी वर्णन प्रस्तुत किया, परंतु बात को विशेष रूप से। तो बात कलाकली अध्याय जो के परिप्रेक्ष्य में एक विद्युत संभाषा परिषद का उल्लेख भी मिलता है। उस विषय वस्तु को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आचार्य जो संभाषा चल रही संभाषा परिषद, उसमें आचार्य साकृत के पुत्र ऋषिकुश ने बात के गुणों का वर्णन किया। बात के गुणों के बारे में, जैसे वायुस्तंत्र, यंत्रधर, प्राण, उदान, समान, व्यान, आत्मा, प्रवर्तक, चेष्टा नाम, उच्च वचानाम, नियंता, प्रणेत्या मनसा, सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक, सर्वेन्द्रियाणाम अभिमूढ़ा, सर्व धातु कर संधान कर, शरीर प्रवर्तको वाच, प्रकृति शब्द स्पर्शयो, श्रवण स्पर्शनयोर मूलम, हर्ष उत्साह समीणाग्ने, दोष संशोषणम, क्षेपता बहिर्मलानाम, स्थूणाम शोतसाम वेता, कर्ता गर्भा कृतिनाम, आयुषो अनिवृत्ति प्रवृत्ति भवति। तो गुणों का वर्णन ऋषि कुश ने, साकृत्य ऋषि के पुत्र ऋषि कुश थे, उन्होंने गुणों का वर्णन किया। साथ ही आचार्य भारद्वाज ने गुणों से युक्त आहार विहार के अधिक सेवन से वायु प्रकोपित होता है, अर्थात आचार्य भारद्वाज ने प्रकोप की व्यवस्था को रखा सामने। आज ऋषि वाल्मीकि विषक कांकायन ने विरुद्ध गुण वाले आहार विहार तो क्या कहा, रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, विपरीत गुणैर द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। तो कांकायन ने क्या रखा, विपरीत गुणैर द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। इसके बाद विपरीत गुणों द्वारा समन चिकित्सा बता दी। ऋषि वशिष्ठ धामार्ग आश्रय स्थलों का वर्णन किया। बस्ती पुरीसा दानम, कटस्थनी, पादावस्तनी, तत्रापि पक्वाशय वात स्थानानि, तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानानि, बात के स्थानों का बताया। और उसमें ते व्यापिनो हिरण्यनाभि ऊर्ध्व मध्य संश्रयात्, ऐसा भी आचार्य भागवत ने बताया। इसके पश्चात सर्वोच्च प्रमाणिक ज्ञान वान राज ऋषि वयोर्विद पारिषिक ने परिषद में वायुस्तंत्र यंत्रधर वाली बात को रखते हुए बाह्य और आभ्यंतर सृष्टि में तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत, और यहाँ तक कहा कि वायु ही भगवान है, वायु ही हमारी प्राण ईषणा है, बात ही हमको प्राण जीवन दायिनी है। ऋषि मरीच ने असत्य अनावश्यक अतिशयोक्ति कर इसका विरोध किया। बात के जो गुणधर्म और उसके आहार विहार का जो वर्णन आचार्यों ने किया, ऋषि मरीच ने इसका विरोध किया। परंतु ऋषि वयोर्विद ने वायु के महत्व को की जरा भी अपेक्षा नहीं की, और उन्होंने विस्तृत विवेचना के लिए सबसे कहा, नहीं, आप बात की विशेष विवेचना करिए और बात को विशेष वैशिष्ट प्रदान करिए। तदोपरांत ऋषि मरीच ने पित्त की व्याख्या की और ऋषि काप्यन ने कफ की व्याख्या की। सभी ने अपने मतानुसार वर्णित दोषों को सर्वोपरि मानते हुए बात का प्राधान्य स्वीकार किया। अंततः पुनर्वसु आत्र ने सभी वक्ताओं का साधुवाद करते हुए तीनों दोषों का अपना अपना शारीरिक व्यवस्थापन के लिए महत्व है, यह सिद्ध करते हुए प्रस्ताव रखा, जिसको सभी ने अनुमोदित किया। अगले पायदान पर आचार्य चरक ने चरकेषु चिकित्सतम, चरक ने वायु के 5 भेदों का उल्लेख किया, उन भेदों के नामों का वर्णन किया और उसके गुण कर्म की विशेष विवेचना की, जो अभी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।
मरीच द्वारा जो पित्त का वर्णन किया गया था, केवल पित्त का वर्णन किया। अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता कुपिता सुवासो, कप का वर्णन किया काप ने, परंतु इन्होंने भेदों का वर्णन नहीं किया। तो आचार्य सुश्रुत द्वारा पित्त के पांचों नामांक और भेदों का वर्णन किया। आचार्य बाघभट्ट ने पांचों कप के भेदों का वर्णन किया और उनका नाम भी रखा उन्होंने। तो मैंने जो मेरी एक वो चार्ट है, चार्ट लीजिए सर, चार्ट पहला दूसरा तीसरा चार्ट है जो, जिसमें कप 200 का वो दिया हुआ है। हाँ, इससे पहले और पहले सर, हाँ ये सर समान, ये मैंने प्रयास किया है महाभूतों के अनुसार दोषों को, एक और पीछे चले जाओ सर, इसके नीचे जाओ, नीचे सर, हाँ ये है, देखिए यहाँ पर दोषों का पांच भौतिक संगठन एवं गुण धर्म का विवेचन करने का प्रयास किया है। जैसे दोष है महाभूत, गुण और कर्म। तो प्राण वायु है, प्राण वायु में आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत शब्द बाहुल्य है, गुण सूक्ष्म लघु विशद है, कर्म इंद्रिय दुख। ऐसे ही आलोचक पित्त वायु चल स्टीवन उद्गार शब्द उद्ग। इस तरह से एक प्रयास किया है महाभूतों के अनुसार तीनों दोषों का एक तुलनात्मक व्यवस्थापन। नेक्स्ट चलिए सर, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा ऊपर को। पवन जी हेलो। तो ये जो भेद, हाँ सर, ये भेदों के अनुसार पांचों भेद, पांचों वायु के भेद जिनका वैशिष्ट अभी प्रस्तुत होगा। इसके बाद सर वो ले आइए जो चार्ट है, कलरफुल चार्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये यही वाला, इसको हाईलाइट करिए सर, सर्किल वाला, सर्किल वाला सर। नेक्स्ट ये यस यस। इसमें सर मैंने, ऐसे प्राण वायु है उसमें आकाश महाभूत अधिक है। थोड़ा सा इसको सर इधर लाएंगे सर, देखिए प्राण वायु है, प्राण वायु वायु और आकाश, इसमें आकाश महाभूत अपेक्षाकृत अधिक है, उससे वायु, फिर तेज, और फिर आप्य महाभूत और पार्थिव महाभूत। ऐसे ही आलोचक पित्त, मतलब प्राण वायु, आलोचक पित्त और श्लेषक कप समान गुण धर्मी है लगभग लगभग, इनका पांच भौतिक संगठन समान है, इसलिए इनके कार्यों में और इनकी चिकित्सा में ये तीनों के एक जैसे द्रव्य अपन दे के लाभ ले सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट बयान वायु, बयान देखिए सर, ये आलोचक पित्त, ये श्लेषक कप, पृथ्वी अप, इसमें आकाश महाभूत अधिक है, इसमें देखिए ये वायु। ऐसे ही इसमें आकाश महाभूत है, मुख्य घटक तेज और अप। नेक्स्ट है वायव्य, इसमें है बयान वायु, बयान वायु में वायु महाभूत प्रधान है और बाकी सब अलग है। ऐसे ही साधक पित्त में वायु महाभूत प्रधान है। ऐसे ही तर्पक कप में वायु महाभूत प्रधान है। नेक्स्ट लीजिए तेज, तेजस, ये समान वायु, समान वायु, समानो नाभि संस्था, ये देखिए पाचक पित्त, समान वायु और बोधक कप, ये एक जैसे मैनर के हैं। ऐसे ही ये सुदान वायु, सबके पांच भौतिक संगठन की सिमिट्री के आधार पर एक मैंने ये चार्ट बनाया है कलरफुल, जिसमें प्रयास ये किया है कि जो आचार्य चरक की कंसेप्ट है, जो सोच है कि ये पांचों इनका देखिए सर, इसमें वायु आकाश, तेज अप, पृथ्वी अप महाभूत, संगठनात्मक कार्य भी उनके उसी तरह से है। हेलो, अब देखिए वायु,
वायु को जहां आचार्य ने कहा वायुस्तंत्र यंत्र धर, वायुस्तंत्र यंत्र धर, वायु इस शरीर की जो हमारे यंत्र, यंत्र माने वायुस्तंत्र यंत्र धर, प्राण उदान समान व्यान अपानात्म। आचार्य चरक ने पहली बार पांचों भेद रखे वायु के। तो आचार्य चरक को हम क्या कह सकते हैं? आचार्य चरक इज द फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला वात विज्ञानी जिसने वायु का बहुत अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया। यह विश्लेषण में उन्होंने पूरा वायु का शरीर को एक तंत्र माना। वायु तंत्र, इस तंत्र को धारण करने वाला तंत्र कहा, यंत्र कहा, पूरे के पूरे ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को, इन सबके संयुक्त संवेद स्वरूप जो तंत्र में गति और प्रवृत्ति का नियंत्रण प्रथमतः वायु करता है। इसलिए आचार्य ने कहा वायुस्तंत्र यंत्र धरा, प्राणोदान समान व्यान अपान। वायु ये पांच भेद हैं, ये पांचों भेद अपने अपने स्थान पर रह करके शरीर का संवर्धन धारण करते हैं। हेलो, प्लीज स्पीकर के अलावा और लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। वायु गति करता है, शारीरिक स्तर पर गति करता है, परंतु मानसिक चेष्टाओं के लिए प्रवृत्ति करता है। प्रवर्तक कैसे प्रवर्तक बनता है? कि जब हमारी इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जब हमारे इम्पल्सेस, हमारे संवेदनाएं कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क में, और वहां से दीज आर नोन एज, ले जाने वाली एफरेंट नर्व्स और लाने वाली एफरेंट। तो उसके विरोध में, उसके विपरीत जो आदेश मिल रहा है ब्रेन से, एफरेंट वेन्स के द्वारा, तो यहाँ क्या दिया उन्होंने? प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च बचा नाम। अंततोगत्वा चेतना के स्तर पर संवेदनाओं का जो आदान प्रदान मन के द्वारा, इम्पल्सेस, रिफ्लेक्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो संपादन होता है, वो मन की गति परक अर्थात मन का नियमन, प्रवर्तीकरण, प्रेरण वायु द्वारा ही होता है। अर्थात रेगुलेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्सेस नियंता प्रणेता च मनसा, नियंता प्रणेता च मनसा स्पष्ट किया आचार्य ने। मन से सूचना या संवेदना इंद्रियों के माध्यम से, मन को क्या कहा? उभय इंद्रिया, इंद्रिया मन के बिना कार्य नहीं करती, तो मन भी इंद्रियों के बिना संवेदना प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः सभी इंद्रियां उचित रूप से मन को संवेदना भेजती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इसलिए हमारे यहाँ कहा कि जब रोग होगा तो क्या होगा? प्रज्ञापराध, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग जब होगा तब क्या होगा? हमारा जो पर्पज है, वो हमारा पर्पज नियंता प्रणेता च मनसा सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकम, इंद्रियों को प्रेरित करता है, उनके कार्य में, उनके कार्य को, इनकी जो जिस पर्पज से इंद्रियों का निर्माण हुआ है, वो इंद्रियां अपने स्पर्श, रूप, रस, गंधात्मक जो उनकी सीमा है, जो उनके नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसको सार्थक, सक्रिय, समयोगवाही सामंजस्य द्वारा वायु से प्रेरित होकर सर्व इंद्रियाणाम अभिबोधा, इंद्रियों को उनके कार्यों में लगाना। जब तक मानसिक क्षेत्र से बात हुई, अब शारीरिक क्षेत्र की जब बात करते हैं, गति धर्मा वायु,
वायु को वा गति गंधनयो इति बात है। गति और गंधन, गति मीन्स ये हो गया कि भाई मूवमेंट जितने भी हैं, जितने भी कंपन है, जितने भी गति है वो वायु के द्वारा। गंधन उत्साह हो योनि, गंधन मैं कुछ बोल रहा हूं या मैं कुछ देख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मैं कुछ, ये सब प्राकृत गंधन है। तो मैं प्राकृत ग्रहण संग्रहण करूंगा और प्राकृत गंधन से प्राकृत उसके प्रत्युत्तर दूंगा। तो ये हमारा इंद्रिय सर्व इंद्रिया नाम अभिमोड़ा ये सिद्ध होता है। सभी स्थान यथा प्रमाण यथा परिणमन परिभ्रमण करना, ये क्या है? सर्व शरीर धातु व्यूहकरण। ये व्यूहकरण की क्रिया भी किसके द्वारा संपादित होती है? हमारी वायु के द्वारा। वायु ही तोड़ता है, वायु ही जोड़ता है। संधान कर शरीरस्य, संधान कर शरीरस्य, सब सर्व शरीर धातु व्यूह कर, ये वही कर रहा है, हमारा वायु कर रहा है। अंग प्रत्यंग हस्त पाद सभी गर्भ का विकास भी वायु कर रहा है। प्राणवह स्रोतस, वायु और सूर्य यंत्रों को सृजन करके, तो क्या है? प्रवर्तको उच्च वचाना, प्रवर्तको वाचः शब्द कह दिया आचार्य सुश्रुतचरक ने, कितना बढ़िया उसका। शब्द और स्पर्श वायु के बिना नहीं जाने जा सकते, शब्द और स्पर्श वायु के बिना उत्पन्न नहीं किए जा सकते। वैसे ही शब्द आकाश महाभूत का गुण है, स्पर्श वायु महाभूत का गुण है, जो मैंने चार्ट में प्रयास किया है शो करने का। परंतु शब्द का ज्ञान भी तरंगीय स्तर पर, स्पर्शात्मक स्तर पर शब्द की तरंगें कर्णपटल तक पहुंचना, शब्द ज्ञान होना और उसकी प्रतिक्रिया होना कि गाड़ी का हॉर्न बजा, अपन ने गाड़ी साइड में ले ली, निकल जा भैया। प्रकृतितः शब्द स्पर्श हो, माने सबकी प्रकृति स्थापना, जो उसका कार्य है उसको संपादित करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध होगा तो रोग का कारण होगा, अर्थात व्याधि। जिन ज्ञानेंद्रियों के मूल में वायु का संवर्धन है, श्रोण स्पर्श न स्पर्शन यो मूलम। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से भी सिद्ध होता है कि हर हर्ष और उत्साह के मूल में भी स्पर्श शब्द का कर्तृत्व सिद्ध है। अतः वायु एक कार्य, और हर्ष हो उत्साह योनि, ऐसा लिख दिया, हर्षो उत्साह योनि। साथ ही वायु का एक कार्य अग्नि संसूषण भी है, क्योंकि वह महाभूत, वायु महाभूत अपने पूर्ववर्ती आकाश महाभूत के शब्द से प्रवर्तन और प्रसारण करता है। उत्तरवर्ती महाभूत में पाचन कर्म के लिए संवर्धन करता है। समीरणाग्नि, ऐसा कह दिया। अग्नि के ठीक करने पर तो धातु मलों का सम्यक निर्माण होता है। दोषों का अपना अपेक्षित घनत्व है, उसमें द्रवता अधिक हो जाएगी तो अग्निमान का घोतक हो जाएगा, उसमें अग्नि महाभूत की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो भस्मक रोग हो जाएगा। संशोषण दोषाणाम, दोषों का संशोषण माने उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संरचना है, उसकी जो संगठना है, उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य भी वायु के द्वारा ही संपादित होता है। साथ ही दोषों के और आहार रस के शोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रसादांश, उसका भी काम वायु के द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा छेप का बहिर्मला नाम, चाहे वो सेल लेवल का हो एक्सक्रीटा, चाहे वो हमारा किसी सिस्टम से संबंधित हो, उसमें से वहां से वो उसका विक्षेपण करता है, उसको वहां से क्षेपण करता है, उसको वहां से हटाता है। यही वायु जब प्राकृत अवस्था में रहता है, छेपता बहिर्मला नाम, उसको निकालता है। चाहे स्थूलाणु स्रोत सांभेता, स्थूलाणु स्रोत सांभेता, छोटे से छोटे हमारे यहाँ स्रोतोरोध होता है। कुपिता नाम दोषा नाम शरीरे परिधात्र, यत्र संग खवे गुण्यात व्याधिस तत्रोपजायते।
ये जो हमारा वो है वो स्रोत स्थूलाणु स्रोत साम वेता, और ये जब कार्य कर सके शरीर की आकृति को बनाने के लिए जब गर्भावस्था में रहता है, कर उसमें वो गर्भ को उसका रूप दे रहा है और उसको आयुषो निवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति कर्ता गर्भाकृति नाम। एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित समयावधि के बाद वो क्या करता है, गर्भ को बाहर निकलता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, वायु को कर्ता गर्भाकृति नाम आयुषो निवृत्तो भवत्य कुपितः। ये आचार्य चरक ने इतना वैज्ञानिक विश्लेषण इसका किया, हमारे बाद दोष का जितना कहीं संभव नहीं था। नेक्स्ट ले लें साहब। पंचात्मा देखो, प्राण उदान समान बयान, ये भेद हो गए। योग वाही परम वायु, योग वाहा, योग वायु। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। योग वाह परम वायु, योग वाह संयोगाद उभयात कृत, दाहकृत तेजसाम युक्त, शीतकृत सोम संस्यात। योगवाही कहा वायु को। योगवाही माने जब वो वायु पित्त के साथ तेज के साथ मिल जाता है तो दाह का कार्य करता है, और शीत के साथ जब मिल जाता है तो कफ का, कफ जैसे शीत के कार्य करता है। ये योगवाही कहा वायु को। अब प्रत्येक वेद के अनुसार उन्होंने आचार्यों ने, आचार्य चरक ने प्राण वायु, प्राण वाला, प्राण प्राण वायु, प्राण वायु सर। नेक्स्ट। एक मिनट। तो निरुक्ति वगैरह तो हो गई सर। बात स्थान बस्ती पुरीसा दानम जे भी होगा कट सक्ति पाद। हाँ, प्राण प्राण वायु, ये जो भेद बता। आ गया सर। सर 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 थैंक यू सर, फिर भाग गया। प्राण, प्राणान धारयति इत प्राणः, स्थानम प्राणस्य मूर्धोर कंठ जिव्यास नासिकाः। प्राणो ऊर्ध्व मूर्धग संचार क्षेत्र, उर कंठ चरो कार्य, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, स्टीवन छवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। ये प्राणवायु को। हृदय प्राणे गुदे अपान समान नाभि संस्था, उदान कंठ देशस्य व्यान सर्ग सर्व शरीर। नेक्स्ट सर। उदान 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 उदानो नाव बयान। चलिए बयान को बोलते। उदान, उदानो नाव, हाँ, उदानो नाव यश ऊर्ध्वमुपेति पवनोत्तम स्थानम उर स्थान उदानस्य, उर स्थान संचारो नासा नाम गलांचरेत, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिय तेन वासित गीता गीतादि विशेषो प्रवृत्ति भी प्रवर्तते छवतु ही कांत काश उच्छ्वास तथा। व्याधि भी बता दी और उसके कार्य भी बता दिए। नेक्स्ट। बयान, देह व्यापनोप, देह व्यापनोप, देह व्यापनोप व्यान शीघ्र गति नृणाम, व्यानो हृदय, व्यानो हृदय स्थित संचार कृष्ण देहचरी महाजव, कृष्ण देहचरी महाजव इनका अर्थ संपूर्ण शरीर। व्यानेन, अब जहां देखिए रस रक्त संचरण की बात आती है वहां पर
संतत्या भोज्य धातूनां परिवर्तस्सु चक्रवत् व्यानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्मणा संतत्या भोज्य धातूनां परिवर्तस्सु चक्रवत्। तो ये व्यान वायु हमारा खाए हुए आहार का जो पाचन हुआ है उसका सर्व शरीर में संचय वानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्मणा संतत्या भोज्य धातूनां परिवर्तस्सु चक्रवत्। कृष्णम देह महाजव गति अक्षेपण उत्क्षेपण निवेश निवेशनिकादि प्राय सर्वा क्रियास्तमिन प्रतिबद्धा शरीरणाम कृष्णो देहचरो व्यानो रस संवहन रस रक्त संचरण का कार्य व्यानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्म संतत्या भोज्य धातु नाम परिवर्तस्सु चक्रवत् स्वेदाश्रिक श्रवणश्चापि पंचधा चेष्टय यत्यप। ये कार्य होगा। नेक्स्ट होगा सर समान समान सम नयनात् समानः समानो अग्नि समीपस्थ समानो अग्नि समीपस्थ समानो है वन्य संगतः। यह हमारा समान उसके पाचक पित्त के साथ में पाचन का कार्य करता है। संचारम कोष्ठे चरति सर्वतः आम पक्वासः चरः अन्नम ग्रहति अन्न ग्रहाति पचयति विवेचयति मुंचति रसस्तु हृदयम याति समान कोष्ठे चरित अन्नम ग्रहत। जैसे वो ग्रहणी है ना षष्ठी पित्त धरा नाम या कला प्रकीर्ता पक्वामाशय मध्य ग्रहणी प्रकीर्ता। तो वो ग्रहणी क्या करती है ग्रहति पाचयति विवेचयति मुंचयति रस रसस्तु हृदय में यात समान मरुत रेति। यह हमारा इस समान वायु का जो पाचन से संबंधित जो कार्य है इसमें समान गुल्म अग्निसाद अतिसार प्रवृत्तिन कुरुते गदान। नेक्स्ट अपान 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 लास्ट अपानो अपानगः संचारी स्थान श्रोणी वस्ति मेडु उरुगोचरः उरुगोचरः शुक्र आर्तव सकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया शुक्र आर्तव सकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया ये हमारी अपान वायु का कार्य है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट 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 हो गया सर। नेक्स्ट 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 एक है सर दोष प्रकोपक रस कटु तिक्त कषायनम विपाका प्रायश कटु कटु तिक्त कषाय रसात्मक टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जी बस बस लास्ट है सर एक पेज बचा है। नेक्स्ट 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 कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों से बात की वृद्धि। यस सर इससे पहले कटु मिर्च लौंग धनिया जीरा। यस सर ओके हाँ जीरा काली मिर्च अजमोदा तिक्त करेला जोरई बहानिम भिंगू कषाय सुपारी अनार सहजना तुलसी। इसके अलावा नेक्स्ट बात सामक रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय नाम विपाक प्रायश कटु अम्लो अम्ल मधुर रस अम्ल रसात्मक द्रव्य से बात का समन होता है। मधुर जलेबी वगैरह गन्ना अम्ल में इमली तम लवण बात दोष एवं सप्त धातु सम्मत दोष आश्रय आश्रय भाव तत्रा स्थिनी स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रोक्तो शेषे सुश्लेषमा तत्रा अस्थिनी स्थितो वायु अस्थि धातु बात का आश्रय स्थल है। प्राण वायु का जो पांच भौतिक संगठन सूक्ष्म लघु विशद इंद्रिय दुख नावस जो मैंने एक चार्ट आपको पहले दिए हैं। व्यान वायु में चल वायव्य गुण समान वायु में रूक्ष अग्नि समीपस्थ तेजस वायु उदान वायु शीत आप्य महाभूत प्रधान अपान वायु खर
गंध बहुल पार्थिव, ये आचार्य चरक का जो कंसेप्ट था, जो आचार्य, तो जहां उन्होंने कहा रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति विच्यते, वायु पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासता। तत्व पांच भौतिक वो भी दिया है। अब ये सर चलिए, अव्यक्तो व्यक्त कर्माचर रूक्ष शीतोश्चर, रूक्ष शीतो आयुर वायु आयुर्बलम वायु आयुर्घात शरीराम अवश्य कीर्तितः, वायु भगवान है क्योंकि उसकी उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति स्थिति विनाश का कारण है, अतः हम वायु को साक्षात भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। स्वयं भूरेवः भगवान वायु, वायु स्वयं भगवान है, वायु भगवान भूत रक्षक, भूत कारण भाव, सुख असुख कर, मृत्यु यम नियंत्रता, प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वास, सर्वांग भावों में सूक्ष्म भागों में वायु व्याप्त है, अर्थात वायु को विष्णु भी कहा है। धन्यवाद, धन्यवाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सूत्र को वाकई में बहुत विशद रूप से वर्णन किया। जय हो शर्मा जी की जय हो। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच, सर। थैंक यू सो मच। अग्निहोत्री जी। नमस्कार सर, पवन जी नमस्कार जी, धन्यवाद। अभी हम लोग डॉक्टर सीपी शर्मा साहब का उद्बोधन सुन रहे थे। मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे गुरु लोग, हमारे शिक्षक लोग बहुत ही योग्य थे, बहुत मेहनती थे, बहुत सराहनीय थे। उन्हीं के ज्ञान के बदौलत हम लोग कुछ कर पाए, यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि हमारे अध्ययन काल में आप जैसे सुगढ़ और विषय वस्तु को इतनी सरलता से प्रदान करने वाले शिक्षक और होते तो शायद जो आज ज्ञानावलोकन हुआ है वो और दृढ़ हो चुका होता। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपने कहा वायु शब्द है और स्पर्श है, तो स्पर्श तो हम आपको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यांत्रिकी की बदौलत वो शब्द हमारे पास तक पहुंचे हैं, तो आप अपने बीच में। और आज के क्रम में जो शब्द स्पर्श दो आपने जो विशेष वायु के गुण बता दिए वो सामने आ गए। अब बात आती है अंत में आपने किया कि साहब वायु भगवान है, सही बात है, भगवान ही प्राण है, वायु नहीं होगी तो प्राण ही नहीं रहेंगे। प्राण वायु को नहीं, पूर्ण वायु को ही हम भगवान मानते हैं। आगे इस तिलस्म के द्वारा अभी हम 4.5 करोड़ वर्ष पीछे चले गए थे। ये आपका तिलस्म था, कोई छोटा मोटा नहीं था, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, नवागंतुक हिम्मत नहीं करेगा। 4.5 करोड़ वर्ष पहले आपने सृष्टि की उत्पत्ति की जो संभावना दिखलाई, और उसको स्पेशली आपने जब ये कहा कि ये आइसोटोप टेस्टिंग के आधार पर स्थापित है, तो आपके वैज्ञानिकत्व और आधुनिक विचारधारा को भी आपने कितना समाहित किया हुआ है, ये आपके उद्बोधन से पता लग गया। आपके उद्बोधन के समय हमारे कुछ माननीय लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, हम उनको सम्मान करना चाहेंगे, उनको याद करते हैं। विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव साहब जुड़े हैं, और हमारे डॉक्टर मैडम पारुल जोशी जुड़ी हैं, साथ में हमारे प्रीति शर्मा जी, और इधर नीलाक्षी देव चौधरी जी जुड़ी हैं, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी नागपुर से जुड़े, और वैद्य तपन कुमार वैद्य जी जुड़े हैं, डॉक्टर भारत चौरंगी जी भी जुड़े हैं, और डॉक्टर रामपाल सोमानी जी के साथ साथ वैद्य राजन पटंकर जी। इन लोगों ने आपको सुना, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी ये विचारधारा हमको प्रतिदिन बिना शीर्षक से मिलती है, और शीर्षक के अंतर्गत मिली तो हम लोग जान पाए कि बात की क्या महिमा है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको पुनः पुनः हम आपके ज्ञान का उपयोग लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू पवन शर्मा जी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, Assistant Professor, Lalit Hari, Department of Sahita, Sanskrit and Siddhant, Lalit Hari God, PG Ayurvedic College, Pilibhit. Welcome, welcome Gupta ji, welcome. Swagatam. थैंक यू सर। हरि ओम। सर एक हरिओम। आपकी सर बहुत अभी तारीफ थोड़ा की है दोस्त। सर छोटा सा मैं भी एक संहिता का समझ लीजिए पाठक हूँ। सर अभी बस मुझे 2 मिनट लगेगा, थोड़ा मैं अभी आपको कनेक्ट होता हूँ सर। चलेगा नो सर? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी सर। तब तक हम किसी जी, राम दो विद्वान हमारे रामदास साथ, जी 2 विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वैद्य तपन जी का कुछ आशीर्वचन ले सकते हैं इस बीच, अगर जी हमारे सर। साथ है जी, क्योंकि उनका हमेशा वर्णन बहुत ही प्रेरणादायक रहता है। वैद्य तपन जी अभी अगर जा चुके हैं तो हमारे क्या हुआ, डॉक्टर भारत जी भी थे अभी। डॉक्टर भाई जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप तब तक इनके 2 मिनट के समय का हम सही उपयोग करना चाहेंगे। नहीं है भारत जी। आज भी नहीं है अभी, फिर हम डॉक्टर सुनीता पांडे जी को ले लेते हैं पटना से। डॉक्टर सुनीता पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए अगर आप सब लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो फिर तो हमारी कल की हमारी गेस्ट लेक्चर रही हैं हमारी नीलाक्षी देव चौधरी जी, और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो फिर हमारे वैद्य पारुल जी तो हमारे साथ ही हैं। अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से अरविंद जी का समय कटेगा, ये समझ लीजिए। तो नीलाक्षी जी आप मैं कुछ उतना कहना टाइम नहीं लूंगी अग्निहोत्री साहब, नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही मिनट बोलना है। मुझे आपका इंडिकेशन मिल गया, तो आप थोड़ा ये समय का जो गैप है उसको भर दीजिए। आपका स्वागत है। मुझे सिर्फ, हाँ जी साहब, मुझे सिर्फ जी। 2 ही मिनट बोलना है, क्योंकि बहुत वार्ताकलाकल्य अच्छी जो बात। है, चलिए समय नहीं का वार्ता सदुपयोग। ध्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति। तो स्त्री स्वास्थ्य के लिए वायु का सम रहना बहुत ही जरूरी है। जी। और इसलिए जब भी हम कोई भी चिकित्सा करते हैं उसमें हम पित्त को, यानी क्योंकि आग्नेयम, आर्तवम, सौम्यम, शुक्रम करके सब सिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पित्त पंगो, कफ पंगो, पंगवो मलधातो। और पेल्विक रीजन जो है वो अपान क्षेत्र है, अपान वायु का क्षेत्र है। तो वो जो है, और इतनी सारी उसको फेजेस में से बार बार पसार होना होता है, इसलिए वो फेजेस की वजह से भी वायु जो है, क्योंकि कैटाबॉलिक चेंजेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं महिलाओं में, इसलिए उनमें वायु का बढ़ना बहुत आसान है। इसलिए अगर वो समझ के ना रहे और वायु को कंट्रोल न कर पाए तो बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। और इसलिए हम मेंस्ट्रुएशन का बोले, प्रेगनेंसी बोले, लैक्टेशन बोले, ओल्ड एज बोले, सभी में वायु का तो प्राधान्य होता ही है। और इसलिए बस्ती चिकित्सा का बहुत महत्व रहता है साहब। स्त्री में बस्ती चिकित्सा का बहुत महत्व रहता है। और बस्ती चिकित्सा जो है उसमें भी विविधता है साहब। जिस तरह काय चिकित्सा में वैसा नहीं है। प्रसूति और स्त्री रोग दोनों में बस्ती चिकित्सा में बहुत सावध रहना पड़ता है। और अगर ऐसे ही दे दी बस्ती तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरी प्रेफरेंस की बस्ती जो है वो मात्रा बस्ती है। बस इतना बोल के यहाँ रुकूंगी मैं। यानी बच्ची पेट में है, माँ के पेट में है, तब से अगर माँ ध्यान रखे कि आई एम कैरिंग अ फीमेल फिटस, और मैं ध्यान रखूं कि उसका वायु जो है वो सम रहे, और तो फिर वो बच्ची जब जन्म लेगी तो बराबर बढ़ेगी और वो बराबर युवती बनेगी और फिर वो अच्छी माँ बन पाएगी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना सब।
हाँ मैम, बात आपने कला कलिया तो बहुत समझने वाला अध्याय है साहब। नहीं नहीं, ठीक है, आपने एक चीज लास्ट में ये कह दी कि महिला ये महसूस करे कि फीमेल फीटस उसके यूट्रस में है, तो ये तो बात नहीं बनी, ये तो कोई नहीं जान सकता, आप तो बिल्कुल बैन है। क्यों नहीं जान सकता? आचार्य ने सभी लक्षण दिए हैं। ये आचार्यों वाम को कुक्षी, बहन जी, हाँ हम जी लोग हाँ जी, मॉडर्न एरा में हमको नहीं, 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 सोनोग्राफी में नहीं जाना। नहीं, नहीं, देखिए हम तो देखिए माँ जो है वो अपने आप से जो सोचेगी और संकल्पना करेगी और वहां से हम साइंस नहीं, हमारा साथ देता है तो ठीक है, वरना हम तो अपने राह चलते ही हैं। मैम आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुक्षी स्थल जो है ना, वो स्वयं ही बात का स्थान जो आपने बताया, उस हिसाब से आप डायरेक्ट पूरा इन जनरल देखिए ना, तो उस हिसाब से आपने जो गोल्डन पॉइंट बताया है कि महिलाओं को विशेष रूप से वात व्याधियों का जो एक प्रकोप होने की संभावना रहती है, राइट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन से लेकर लैक्टेशन और एल्डरली एज के लिए आपने जो बात कही, वो तो बहुत सार्थक लगी है। बाकी में कुक्षिगत जो वायु की प्रधानता का जो क्रम रहेगा, उस क्रम के अंतर्गत तो इन जनरल लीजिए उसको, जेंडर वाइज मत करिए, और साथ में जो जेंडर में माता नहीं हूँ मैं फीमेल हेल्थ की बात कर रही हूँ, मुझे जेंडर से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज हेल्थ ऑफ फीमेल एंड द फैमिली। इफ द फीमेल इज देयर इन फीटस, आपका ये कहना था ना? फीमेल फीटस है और उसकी जी, माँ जो है वो ध्यान रखती है कि मेरी बच्ची जो है उसमें वायु बढ़े नहीं, तो वो बच्ची जब जन्म लेगी जी। तो उसका निश्चित रूप से बढ़ाव जो है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, ये आपका एक्सट्रीमली आपका एक्सपर्टाइज है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस गैप। थैंक यू सो मच। आई डू होप थैंक यू दैट सर। डॉक्टर अरविंद जी कुमार सर, सभी को might have नमस्कार। joined. Thank you, Namaskar. I think Dr. Arvind Kumar might have joined by now and he is comfortable. नमस्कार सर। Yes, please carry on. या Thank you. यस 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 आई एम कंफर्टेबल सर। सर सभी विद्वतजनों को मेरा नमस्कार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है अनुमान प्रमाण। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, अनुमान आपकी प्रमाण, आवाज नहीं आती। Make एक more मिनट। loud. हाँ सर, हाँ सर। सर जो प्रमाण मैंने लिया है वो है अनुमान प्रमाण। वैसे तो प्रमाण सारे ही जो हैं वो ज्ञान के जो एक एक्यूरेट नॉलेज है उसके लिए हमारे सभी ये प्रमाण काम आते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है वो है अनुमान प्रमाण, क्योंकि हम अपनी जो भी चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो आपका निदान हो, चाहे पूर्व रूप कुछ भी हो, हम अनुमान ज्यादा करते हैं। और वैसे भी अगर हम कहें कि प्रत्यक्षम, कहा है आचार्य चरक ने, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, कि प्रत्यक्ष अल्प है, प्रत्यक्ष अल्प है और अनल्प जो है अप्रत्यक्ष है। यानी क्योंकि हम जो संसार है उसके हम 3 भाग कर लें, जिस एक भाग में हम होते हैं और एक हमारे होने से पहले और एक हमारे जाने के बाद, ये 2 पार्ट में हम नहीं होते। तो जितना भी हम ज्ञान करते हैं वो 1/3 हिस्सा ही हम संसार में, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, वो हमें 1/3 हिस्सा ही ज्ञान कर सकते हैं। तीनों हिस्से का ज्ञान अगर हमें करना है तो हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का वर्णन किया। एज सभी को, आप सभी विद्वान जो विद्वत जन हैं उनको पता ही है कि अनुपश्चात नियते ज्ञाते अनुमानम, जो प्रत्यक्ष के बाद आए या जो जिसका ज्ञान बाद में किया जाए वह अनुमान है। और आचार्य चरक ने 3 टाइप का जो अनुमान बोला है, वह बोला है कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन 3 प्रकार का अनुमान हम
कह सकते हैं। ज्यादा अनुमान के विषय में मैं नहीं जाऊंगा कि अनुमानम खलु त्रिकोपि अपेक्षा और बहुत सारे अनुमान की डिफरेंट डिफरेंट लक्षण परिभाषाएं छोटी छोटी दी गई है, क्योंकि आप सब विद्वान हैं, आपको ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। सबसे पहली बात, अनुमान के द्वारा हम आप थोड़ा ना तीनों लाइट कालों का ज्ञान कर सकते अपने फेस से लाइट करिए, या लाइट का फेस कर लीजिए, आपका ब्लैक ब्लैक आ रहा है थोड़ा सा, वो रिकॉर्ड। यस, इट्स फाइन, इट्स वंडरफुल, हैं। क्योंकि जी सर। रिकॉर्ड में जा रहा है ना सारा, यूट्यूब पे डायरेक्ट आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। है सर। जी सर। तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान लगाना हमारे लिए आसान होता है। ये जो प्रत्यक्ष है, उसके बाद अनुमान अगर हम लगाते हैं तो हमें क्यों अनुमान की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि प्रत्यक्ष जो हमने देखा, उसके पश्चात और क्या संसार में फिनोमेना घटित होगा, उसके बारे में अगर हम कुछ कहें तो वह हमें अनुमान से ही कहना पड़ेगा। और हमारे आचार्यों ने जो भी आप्तोपदेश को वर्णन किया, वो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को मिला करके उन्होंने जो कुछ देखा, उसके संदर्भ में जो भी उनको ज्ञान हुआ, कारणों के द्वारा, कारण द्रव्यों के द्वारा, उसके द्वारा उन्होंने आप्तोपदेश हमारे लिए वर्णित कर दिया। आप्तोपदेश जब उन्होंने वर्णित कर दिया, वो हम ज्ञान कर लेते हैं। उसके पश्चात हमें अनुमान प्रत्यक्ष आता है कि हमने कोई भी रोगी विशेष को हमने देखा, रोगी विशेष में ये लक्षण मिला, उसमें ये लक्षण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अगर हम इसके पीछे अगर हम जाएं तो हमें अनुमान की सीधी एक दृष्टि दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें कि 3 प्रकार के अनुमान हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः। जो कार्य कारण सिद्धांत है, उनके अनुसार, जैसे आचार्य चरक ने बोला कि कहीं बादल हो रहे बारिश हुई है तो पूर्व में इसके बादल आए ही होंगे, ऐसा उन्होंने फ्यूचर क्या अनुमान सॉरी सर, थोड़ा सा उल्टा हो गया कि इन्फ्लुएंस ऑफ या इमेजिनेशन ऑफ रेन बाय लुकिंग क्लाउड्स। अगर वो बादल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बारिश होने की संभावना। अगर कोई व्यक्ति पेशेंट हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक पेशेंट आपके पास आता है, वो रेगुलर स्मोकर है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस या एम्फीसिमा इस टाइप की बीमारी होने की संभावना भविष्य में है। शेषवत, कार्य को देख करके कारण का अनुमान। जैसे कहीं पर बाढ़ आई हुई है, या आचार्य ने जो बोला कि वो कहीं पर बाढ़ आई हुई है, आचार्य चरक ने जो रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि कहीं पर अगर बाढ़ आई हुई है तो हमें अंदाजा करते हैं बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। और कोई पेशेंट ही हमारे पास आता है और कोई सिम्टम हमारे सामने रखता है कि हमें साहब ये परेशानी हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है, हमें इसका अनुमान लगाना पड़ता है, वह शेषवत अनुमान है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने, ये डायरिया पेशेंट अतिसार लेके आया हमारे पास और पेशेंट ने कहा कि साहब हमको लूज मोशन या लूज स्टूल हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे क्या कारण है, उसने या तो कुछ रॉन्ग फूड हैबिट उसकी रही, उसने कुछ गलत खाया, यह शेषवत अनुमान में है। इसके बाद एक आता है तीसरा बताया जो आचार्य ने, सामान्यतो दृष्टि, कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को
देख करके, एक जगह कार्य को देख करके दूसरी जगह के कारण को अनुमान लगा। जैसे उन्होंने कहा कि आम का बौर एक जगह पर आया है, तो वैसा ही आम का बौर दूसरी जगह पर भी आया हो। जैसे आज हम लोग बैठे ही हैं कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन। सामान्य तो दृष्टि में ये आप अगर यहाँ पर जैसे इंडिया में कोविड-19 के केसेस दिखाई दिए, तो ऐसे ही केसेस अमेरिका में भी दिखाई दिए होंगे। यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। इसके बाद अनुमान, जो तर्क संग्रह ने कहा कि हम अनुमान कैसे, उसके स्टेप्स क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके बारे में अगर हम उसके पीछे जाएं, तो उन्होंने कहा कि हम पंच अवयव वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। पंच अवयव वाक्य का प्रयोग, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, ये सारी चीजें आती हैं। ये 5 चीजें आती हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, आचार्य ने जैसे कहा कि पर्वत अग्नि वाला है। पर्वत अग्नि वाला है, या हम अगर दूसरा एग्जाम्पल इसका कहें, पर्वत अग्नि वाला है, तो इसका हेतु अगर हम लें, धुआं वहां दिख रहा है। जब धुआं दिख रहा है तो वहां पर अग्नि होती है, जैसा हमने किचन में देखा। जब किचन में हमने जैसा देखा कि धुआं वहां जब भी दिखता है तो अग्नि जरूर जलती हुई होती है, ऐसा ही तो उसका उपनय कन्विंस करने के लिए किचन का, ताकि किचन में भी ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसा ही हम निगमन या कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे कि यह पर्वत भी अग्नि वाला है। अब अगर हम आधुनिक एग्जाम्पल्स की बात करें कि ये जो पेशेंट हमारे पास आया है, इसको टीबी है या ट्यूबरकुलोसिस इसको पेशेंट को है, इसका हेतु हम क्या? हेतु कि उन्होंने एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि अगर किसी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो अगर दिखाई देता है तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसको टीबी। ये इसका हेतु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और दृष्टांत क्या लेंगे? हमने जो भी पेशेंट पूर्व में देखे थे, उन सभी पेशेंट्स में हमें जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिला था, तब डेफिनेटली उस पेशेंट को टीबी दिखाई। इसके बाद इस पेशेंट में क्या है? इन प्रेजेंट पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज प्रेजेंट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी टीबी है, ऐसा निगमन या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस प्रकार से अनुमान को आधुनिक एग्जाम्पल्स के साथ हम दूसरों को समझा सकते। इसके बाद नव्य न्याय वालों ने कहा कि 3 प्रकार के अनुमान होते हैं: केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। केवलान्वयी, एक चीज प्रेजेंट है तो दूसरी भी प्रेजेंट होगी, यह साहचर्य संबंध इस टाइप का अगर दिखाई देता है तो वह केवलान्वयी। जैसे किसी भी व्याधि का कार्डिनल साइन, जैसे गृहिणी का मुहुर्बद्धम रुद्र, ऐसा अगर कार्डिनल साइन दिखाता है तो वह हम केवलान्वयी है, ऐसा हमारा अनुमान केवलान्वयी अनुमान के अंतर्गत। और दूसरा है केवल व्यतिरेक। इसमें हम
एक अगर अब चीज अब्सेंट है तो वो चीज नहीं होगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि किसी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट नहीं है तो उसको टीबी नहीं है। कोई और बीमारी हो सकती है लेकिन टीबी नहीं है। या किसी में मलेरिया पैरासाइट अगर प्रेजेंट नहीं है तो निश्चित रूप से उसे मलेरिया नहीं है, किसी और प्रकार का ज्वर है। तीसरा जो है अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेकी में हम दोनों के द्वारा, अगर एक प्रेजेंट है तो प्रेजेंट नहीं तो दूसरा प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा प्रेजेंट भी नहीं होगा। जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी भी रोग के डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम इस अन्वय व्यतिरेकी के अंतर्गत रख सकते हैं कि हमने टेस्ट किया, ये मिला तो ये है, ये मिला तो ये है। अगर विडाल टेस्ट किया हमने, विडाल टेस्ट में 1/60 में अगर दिखाई देता है तो 1/80 में दिखाई देता है तो निश्चित रूप से है, 1/320 में दिखाई देता है तो निश्चित रूप से नहीं है। इस टाइप का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम अन्वय व्यतिरेकी को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम और उदाहरणों की बात करें अगर, तो जैसे हमारे आचार्य ने क्लैब्य का वर्णन किया। क्लैब्य रस धातु से भी होता है और शुक्र धातु के जब ये दृष्टि होती है, शुक्र धातु की दृष्टि से भी क्लैब्य होता है और रस धातु की दृष्टि से भी क्लैब्य। अगर हमें इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है कि कुछ नरिशमेंट की प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे कि वो रस धातु जन्य ये जो क्लैब्य है वह उपस्थित है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि ये दूसरे वाले प्रकार का क्लैब्य है। इसके बाद और भी जगह पर हमने अनुमान का बहुत अच्छे से हमारे आचार्य ने वर्णन किया है। जैसे निदान, अगर हम निदान की बात करें तो निदान में मृदभक्षण जन्य, मृदभक्षण किसका, मृदभक्षण बार बार पेशेंट कर रहा है, ये किसका, उससे क्या आगे होने की संभावना है, मृदभक्षण जन्य पांडु। और हमारा ट्रीटमेंट में क्या कहा गया, निदानो परिवर्जन। और निदान का जब तक नहीं करें, बार बार पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि पांडु की हमें शिकायत है, पांडु की शिकायत है, पांडु की शिकायत है, इसका मतलब यह है कि वह, हमारा अंदाजा यही रहेगा कि हम उसने मिट्टी खाना नहीं छुआ। अगर हम पूर्व रूप की तरफ जाएं तो अगर किसी पेशेंट को जमहाई आ रही है तो हमारा अनुमान क्या रहेगा कि इसको वातिक ज्वर, थोड़ा उसका ताप बढ़ा हुआ है, ज्वर है और जमहाई बार बार आ रही है, तो हमारा क्या अंदाजा रहेगा कि इसको वातिक। अगर नेत्र में दाह है तो वैक्तिक ज्वर है। और अन्न में अरुचि आ रही है तो कफत ज्वर। इसमें ट्रीटमेंट में क्या हमें हेल्प मिलेगी कि दोष प्रत्यनिक चिकित्सा और आम पाचन हम इसमें देंगे तो पेशेंट जल्दी से ठीक होता है। इसके बाद अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो प्राण, उदक और अन्न वह स्रोतस का जब ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिखाई दिया तो हमने कहा कि इसको हिक्का नाम की व्याधि। और हिक्का में किस प्रकार की चिकित्सा करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट में क्या हेल्प मिलेगी, हमारा ये 3 स्रोतस का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ दिखता है प्रत्यक्ष में तो हमें अंदाजा लगता है कि इसको हिक्का नाम की व्याधि हो सकती है श्वास की। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्या हेल्प मिलेगी हमें इस अनुमान करने से, हमें अनुलोम चिकित्सा इस पेशेंट को देगी। और अगर
बाह्य स्रोत से रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही है, यानी हमें अंदाजा क्या लगाना है कि इसको रक्त पित्त में कैसे कैसे करनी है, प्रतिलोम चिकित्सा। इसके बाद अगर हम उपशय की बात करें तो शीत का से उपसेवन करने से उसका रोग की वृद्धि हो रही है, जैसे कि संतमक श्वास में हमें दिखाई देता है। इसमें हमें ट्रीटमेंट में क्या हेल्प मिलेगी, इस अनुमान लगाने से विपरीत अर्थकारी चिकित्सा हमें करनी है कि जो उसका कारण है उसके प्रति विपरीत वातावरण में उस विषय को मिले। इस प्रकार से और भी सापेक्ष निदान करने में अनुमान, अगर हरिद्र वर्णम मृदम च मूत्रम बिना प्रमेय से ही पूर्व रूप है ऐसा कहा गया है, तो वह प्रमेय के पूर्व रूप के बिना अगर हरिद्र वर्ण का मूत्र आ रहा है तो ये हम कहें कि उसको रक्त पित्त नाम की व्याधि, और फिर रक्त पित्त में स्तंभन चिकित्सा हम उसकी करेंगे। इस प्रकार से अगर हम कहें कि हमारा जो अनुमान प्रमाण है इसका बहुत सारा उपयोग हमें हमारे आचार्यों द्वारा हमारी चिकित्सा में बताया गया। जैसे चरक संहिता विमान स्थान में आचार्य ने अनुमान की हेल्प से बहुत सारे चीजों का परीक्षा करने को बोला, जैसे अग्नि जरण शक्ति, जरण शक्ति को देखने, अग्नि का विचार करना है तो उसकी जरण शक्ति, बलम व्यायाम शक्ति अपेक्षित, इसी प्रकार के कि व्यायाम शक्ति को देख करके कितना व्यायाम कर लेता है उस हिसाब से उसका बल कितना होगा इसका अंदाजा। इस प्रकार के लगभग 34 पॉइंट्स वहां पर विमान स्थान में चौथे चैप्टर में वर्णन। और बहुत सारी अंदाजा लगता है हमारा अनुक्त व्याधियों का, कि हमने प्रत्यक्ष में देखा इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, हो सकता है उसके लिए अनुक्त व्याधियां, जैसे अभी हमारे यहाँ हमारे कोविड-19 का सिचुएशन ही आया, इसका ट्रीटमेंट कहीं वर्णन तो पता नहीं चलता क्योंकि आचार्यों के समय तो नहीं था, तो उसका अनुमान से हम वर्णन और ट्रीटमेंट हम लोगों ने सभी लोगों ने किया और सभी ने उसका परिणाम भी देखा। इसी के साथ साथ रिसर्च में जब हम करने चलते हैं रिसर्च को, तो अनुमान से ही हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, प्रोबेबिलिटी, आर्गुमेंट, उसकी प्लानिंग ऑफ स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, किस प्रकार से डिस्कशन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है डिस्कशन, वो भी अनुमान से ही हम लोग लिखते हैं और कंक्लूजन भी उसके द्वारा लिखा जाता है। इस प्रकार से हम अनुमान के द्वारा जो अप्लाइड हम उसे रिसर्च और डायग्नोस्टिक टूल के रूप में अनुमान प्रमाण को प्रयोग कर सकते हैं। सर ये ऐसा थोड़ा सा मेरी अपनी अल्प बुद्धि से मैंने जो मुझे समझ में आता है मैं उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया सर। और ये अनुमान के संदर्भ में बाकी मैंने जो एस्पेक्ट था निदान और जो वर्णन का एस्पेक्ट था कि कैसे क्या अनुमान होता है उसके बारे में मैंने वर्णन नहीं किया, केवल अप्लाइड एस्पेक्ट उसके आप लोगों के विद्वजनों के समक्ष रखता है। आशा है कि थोड़ा बहुत अच्छा सभी को लगा होगा। धन्यवाद। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विनम्र भाव से और विशद विस्तृत विषय विवेचन किया। वाह, सरस्वती माँ की आप पे कृपा हमेशा बनी रहे। अग्निहोत्री सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पवन शर्मा जी।
थैंक यू डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी। आपने फिर चेहरा अपना प्रकाश के विपरीत दिशा में कर लिया है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप ठीक आगे, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में ये दो बातें बतलाई। एक तो ये कि जो ग्रंथस्थ प्रमाण विज्ञान है हमारे पास चरक संहिता के अनुसार, तो उसमें आपने बताया कि प्रत्यक्षम अल्पम और अनुमानम अनंतम। तो बिल्कुल सही बात है। जहां एक और आपने अनुमान प्रमाण से संबंधित ग्रंथस्थ संदर्भों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर आपने अनुमान प्रमाण का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो बहुत विस्तृत चर्चा में बताया, और ये कोशिश की उदाहरण दे दे के कि ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, नहीं है। हालांकि वो सब आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर रखा। पहले भी लोग नाड़ी विज्ञान, नाड़ी परीक्षण करके ये बतला लेते थे कि क्या खा के आए होंगे, या इस समय जो दोष विशेष उल्बण हो रखा है तो उसके पीछे जो सन्निकष्ट और विप्रकष्ट निदान क्या रहे होंगे, इसका अनुमान लगाते थे। अच्छा, पूर्व में जो हमारे बहुत सारे उदाहरण अनुमान प्रमाण जब हम लोग पढ़ते थे, तब जो चर्चा में आती थी, आपने भी चर्चा की कि यत्र यत्र धूम्र तत्र अग्नि वर्तते, ऐसा करके भाव आता है। अगर धूम दिखाई पड़ रहा है तो अग्नि भी वहां होगी, क्योंकि बिना अग्नि की धूम नहीं बनता। अब ये अलग बात है, जो H2SO4 की बॉटल रखी है तो वहां से फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन एक जो उदाहरण जो उन दिनों बहुत चलता था, उसमें थोड़ा सा अब परिवर्तन की आवश्यकता आ गई है, जो था कि मैथुनम गर्भ दर्शनाथ। अगर गर्भ का दर्शन हो रहा है, इसके मतलब मैथुन हुआ होगा। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जब हम IVF की स्थिति देखते हैं तो वहां पर मैथुन की स्थिति नहीं बनती। तो ये कह सकते हैं शुक्र संयोग, शुक्र शोणित संयोग से गर्भ मतलब शुक्र संयोग, शुक्र शोणित संयोग गर्भ दर्शनार्थ, ये अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी एक चर्चा होती। लेकिन अगर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनुमान प्रमाण की कितनी बड़ी व्यवस्था है। भारत सरकार और विश्व के सभी विभाग अनुमान के अनुसार ही चलते हैं। अनुमानित व्यय, अनुमानित लाभ, अनुमानित हानि, अनुमानित बजट। हमारे यहाँ जो DPC बनती है, डिटेल्ड प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो अनुमानित पिछले वर्ष इतना खर्चा आया था, अब कितना खर्चा आएगा। तो अनुमान तो एक ऐसा सशक्त इस समय शब्द है जिसके आधार पर ही मूवमेंट है। पिछली सड़क इतने किलोमीटर की इतने पैसे में बनी है, तो अब अनुमानित वह अगले बार के बजट में कितना आएगा। तो अनुमान प्रमाण वहां पर तो ग्रंथस्थ था। वर्तमान में प्रत्येक क्रम में पिछली शादी में इतना खर्चा आया था, तो अब अगर दूसरी शादी करनी है तो महंगाई दर को देखते हो कितना अनुमानित व्यय हम इसके लिए स्थापित करें। तो अनुमान प्रमाण का, चाहे आप उसको युक्ति से भी जोड़ेंगे, आपने जोड़ा ना कि प्रत्यक्ष और अनुमान को जोड़ दें तो वो हमारा आप्त बन जाता है, या आप्त और प्रत्यक्ष जोड़ दें तो अनुमान बन जाता है। वो बातें ठीक है, लेकिन आज तो हम अनुमान के ही युग में जी रहे हैं। एक घर में 10 किलो आटा पंदा इनमें लगता है, तो अगर 12 लोग हो जाएंगे तो अनुमानतः कितना आटा और लेना पड़ेगा, कितना खर्च होना पड़ेगा। ये जो विधा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा है। तो बताइए, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे आचार्य चरक और हमारे मतलब आयुर्वेद के ग्रंथकार कितने सुयोग और सुबुद्धि और दूरदृष्टा रहे होंगे कि उन्होंने अनुमान के प्रमाण पर भी इतना बल दिया, जो कि प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष से कम भी नहीं है। तो आपने विषय पकड़ा, मुझे विश्वास है अभी आपने हमें पूर्णाहुति नहीं दी है, आपको समय के अनुसार अपने वाणी को विराम दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा, सोचा, समझा जा सकता है, और प्रैक्टिकल इसका बहुत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब 10:15 से ऊपर हो चुका है, तो मेरे को 10 मिनट के अंदर ही सबका डिस्कशन लेके जी करना सर। होगा। तो ओवर टू पवन जी, आगे का निर्देशन जी सर। बताइए कैसे करना है। मालिक आप हैं, स्टेज आपका है। जय हो, जय हो। तभी तो चिंता हमारी ज्यादा है। अभी हम प्रेम शंकर पांडे जी, हमारे वैद्य जी सामने मौजूद हैं, इनके हम आशीर्वचन चाहेंगे, जिससे कि हम 2-3 लोगों को समय रहते हुए ले सकें। वैद्य जी सुबह से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अपना आज की प्रस्तुति पर अपने विचार रखिए और कुछ सजेशन भी दीजिए। जी नमस्कार, स्वागत है।
आशा सुराशी भवदंगवल्ली पाशैव दासी कृतदुग्ध सिंधुम मंदस्मृतिर्निन्दितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन सुंदरी त्वाम। सभी हमारे दोनों ही वक्ता गण, विद्वान वक्ता गणों को नमस्कार। शर्मा जी, प्रणाम डॉक्टर सर। अग्निहोत्री जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में, दोनों ही वक्तव्य बहुत ही अच्छे रहे और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए। बात कलाकली पर चर्चा करते हुए डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उसको पूरी बात समझाया। बात कलाकली जो प्रकरण शुरू हुआ उसका भाव ही है कि वायु के कला अर्थात गुण और अकला वायु के दोष दोनों का वर्णन जिस अध्याय में किया गया हो, अथवा वायु के कला अर्थात सूक्ष्म अंश और कला के कला मतलब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म अंश, दोनों को और अच्छे ढंग से जिसमें वर्णन किया गया हो वो बात कलाकली अध्याय था और इसको बड़े अच्छे ढंग से डॉक्टर शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता जी ने अनुमान पर इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया। मैं तो देखता हूं कि जितने भी हम लोग जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं पैथोलॉजी के या डायग्नोस्टिक और चाहे एक्सरे हो, लोग कहते हैं कि एक्सरे प्रत्यक्ष है और मैं कहता हूं कि एक्सरे बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं, वो केवल अनुमान है और वो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान है। जितने भी एक्सरे कह लीजिए, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, जितने भी हैं सभी अन्वय व्यतिरेकी अनुमान पर आधारित है और जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं चाहे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सभी अनुमान पर ही आधारित है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। अप्रत्यक्ष जो है वो अनल्प है और उसका ज्ञान अनुमान से ही होता है या शब्द प्रमाण से होता है। छोटे छोटे उदाहरण डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। हम लोग देखते हैं कि हमने परकशन किया, आकोठन किया, लीवर के ऊपर आकोठन किया, अगर हमको रेजोनेंट साउंड आती है तो हम समझ लेते हैं कि इस रोगी को कहीं ना कहीं जो है वो विद्ध हो गया है आंख में, इसको परफोरेशन हो गया। बिना देखे बिना सुने हम उसको रेफर करते हैं, तुरंत जाओ ऑपरेशन करवाओ, 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये अनुमान बहुत ही सशक्त माध्यम है डायग्नोसिस का। और तो हम दूर की बात नहीं करते हैं कि यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र वह्नि, वो तो एक उपलक्षण है केवल। लेकिन हम लोग जो करते हैं कि जहां जहां रेजोनेंट साउंड है वहां नीचे वायु का स्थान है, वायु भरी हुई है, आधमान है। अगर रेजोनेंट साउंड आ रही है तो नीचे वायु भरी हुई है पेट में। तो ये अन्वय व्यतिरेकी अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है निदान के लिए खास तौर से। तो और इसीलिए अनुमान कहा गया अनुमीयते, नियते मतलब नापा जाए। प्रत्यक्ष के बाद प्रत्यक्ष के आधार पर जिसको हम नापते हैं वो अनुमान कहलाता है। तो डॉक्टर गुप्ता जी ने बड़े अच्छे ढंग से जो प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए अनुमान का वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी। समय असल में आज भी ठीक ही रहा। अग्निहोत्री जी से मैं डॉक्टर वीके अग्निहोत्री सर
आई होप वो व्यस्त है अभी। डॉक्टर रामदास पीवीसी, वेलकम डॉक्टर रामदास। Dr. Ramdas, am I audible to you? डॉक्टर वीके अग्निहोत्री सर, अचानक आपकी आवाज बंद है। सही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो क्या? जी जी जी। नीलाक्षी देव चौधरी जी प्रणाम। डॉक्टर नीलाक्षी देव चौधरी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आप बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, 2 टॉक आपने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हमको ये सुन के अपना टीचिंग में बहुत लाभ होगा सर। और बात कलकलिया अध्याय के बारे में जो सीपी शर्मा सर ने बताया, वो बहुत मीन्स यूनिक था। जैसे वो डिस्क्राइब किया, कैसे कंपेयर किया, फिर वात को कैसे नर्वस सिस्टम में लिंक किया, फिर चरक न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट न्यूरोलॉजी का बताया सर ने। सो वो बहुत अच्छा था और वेरी इंटरेस्टिंग। और अरविंद कुमार सर का जो बताया अनुमान के बारे में, जैसे कैसे हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स दिया फ्रॉम रेन देख के, फिर बॉडी में दर्शन करके या अनुमान, दर्शन करने के बाद जो अनुमान होता है, फिर डिफरेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, मिट्टिका भक्षण जन्य पांडु, ऐसे जो टेक्स्ट बुक से जो निकला, फिर वो एक्स्ट्रा जो बोला वो बहुत सर हेल्पफुल था। सर आपको थैंक्स, आपने इतना अच्छा टॉपिक ऑर्गेनाइज किया। चरक जयंती के अनुसार जो चैप्टर्स का जो रिकैपिचुलेशन हो गया है, तो हम लोग को बहुत मदद हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्रीति शर्मा जी तो आई होप डॉक्टर सीपी शर्मा जी की डॉक्टर इनला है। वेलकम वेलकम। अग्निहोत्री सर। सर वो जरा सा कॉल आ गई थी बड़े बेटे की। हमारे पास अब बहुत तो पार्टिसिपेंट जिसका हमें आज सुनने का बड़ा मन था, वो तो निकल चुके। हम सीपी शर्मा साहब का और अरविंद जी का फीडबैक लेना चाहेंगे 1-2 मिनट में, लेकिन हमारे साथ अभी डॉक्टर नीलाक्षी देव चौधरी जी जुड़ी हुई हैं। नीलाक्षी जी बोल चुकी हैं सर। बोल चुकी हैं? अच्छा, वो उसी तो हाँ, ऐसे है, कोई नहीं, आपके सजेशन थॉट आ गए, ठीक है। अब डॉक्टर प्रीति बोलेंगे कुछ, प्रीति शर्मा जी, और प्रोफेसर रामदास जी से ले लेते हैं, कुछ उनके इनपुट ले लेते हैं 1-2 मिनट। प्रोफेसर रामदास जी आप हैं? आर यू हियर सर? प्रोफेसर रामदास जी, you're here. I invite you to please say two words. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Actually, the name of the chapter is one of the important things. He is used Kala and Akala. Yeah. When you say Kala, it is a gross matter. When you say Gross Akala, it is subtle. Yes, Kala means that which is coordinating with the other parts and becoming a gross part. Akala means that which does not have the Kala, but as a whole it acts. One meaning. Kala is Vayu coordinating with the body and doing its right action. Akaliya, the action that which is not suitable for the body. Like this, different meanings can be given for the heading of the chapter. And very important thing, he told only Vadagala Agaliyam. He did not say Pittagala Agaliyam or Kapakala Agaliyam. Why? Already all speakers told, because Pittam Pangu, Kapham Pangu. Wherever you want, it is. Vata is not there and nothing is going to happen. So there itself the discussion comes also. There is a Karanadi, is one of the scholar. He asks
this much you spoke about, so the Vata should be the important dosha here. Then Atreya is giving the reply that in Chakravani's Vyakhana, it is okay, but still you should not think that Vata is important and Pitta and Kapha is not that much important. It is a wrong way of concept, but without regulating the Vata, if you do treatment for Pitta or Kapha, it is not going to work out. So this is only for Vaidyas reminding that you should regulate Vata, then only you have to go for other treatment. This is the conclusion. Don't say Vata is the very important dosha. Such a discrimination should not be done. All the three doshas are having action. But without regulating Vata, you cannot do the treatment, it will not give. That is why such a chapter is being told. And C.P. Sharma sir told that first neurosurgeon is Charaga, no doubt, because Vayus Tantra Yandra Pravartas Cheshtana, full mental activities, full mind activities only. So Vata's main action is concentrating on the mind and its activity. And you know that Rajoguna means almost Vayu only. If you take yoga, Ashtanga yoga, if you take in that one also, Rajoguna is closely related to the Vata only, because it is unstable and etc., Sukshma and etc. So such a way, Vata Guna plays a great role among the three doshas, but never ever should say that Vata is important dosha and others are not. This should not be, but regulate the Vata, then go for the treatment. To show that only, he has given the name Vada Kala Akaliyam as the name for that chapter. This is with the point of view. Already 10:32. I wonder Thank you, that. sir. Thank you very much. Really, it's a great approach. Really, the question and the answer both are given by you. As you told, persons are Dr. C.P. Sharma are talking about the Vat Kala Kali Adhyay, because it is been written there in the text. But at the same time, why not Pitta Kala Kali and Kapha Kala Kali? The answer is very straight, because Vata is just like the engine of the train, and it is carrying Pitta and Kapha as they are Pangu, but nevertheless they are of lesser importance. The fact is they are equally important. Individually, Vat will not perform all the activities which are done by Pitta and Kapha. So everything is there. Means the hair is important, that the little finger is important, so is the index finger. In the same manner, we have to have the holistic approach with Vat, Pitta and Kapha. So kind of you. You made the concept very clear. Thank you very much. Thank you. So Dr. C.P. Sharma sir, on this comment of Professor Ramdas ji, would you like to add any one more sentence? Yes sir. Yes, Yes please. sir. Yes, please. Yes, जब please. हम जब क्लास में होते हैं सर, बच्चों को पढ़ाते हैं, जी जी. तो चरक की जब बात आती है तो फिर बात ही बात है, बिना बात ही बात है. जब इसलिए हमने ये कहता हूं मैं बच्चों से, चरक इज द फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स. That is been accepted by Professor Ramdas ji. So yes. सर आप पित्त कला कली अध्याय वाली जब बात आती है, पित्त कला कली की जब सोचते हैं, तो आचार्य सुश्रुत इज द फर्स्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सर. उसने जो पित्त का वर्णन किया है, अग्नि रेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता अकुपिता शुभानि करोति तद्यता पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम. उसने सब भेदों को बड़ा क्लासिफाई किया. तो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं आचार्य सुश्रुत, उन्होंने पित्त के ऊपर विशेष किया, तो कह सकते हैं अपन. परंतु उस समय जो चल रहा था, वो करंट एरा में, जहां 80 जो बात के रोग हैं, उसका प्राधान्य रहा रोगों के प्राबल्य, और जो भी नानात्मज विकार है, उन नानात्मज विकारों के आधार पर आचार्यों ने परिगणना कर बात को महत्व दिया. इसलिए ऐसे ही मैं और कहूंगा एडिशन कि कफ कला कली अध्याय, आचार्य भागवत ने कफ के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है. जहां पित्त की, रंजक पित्त की बात आती है, वहां पर आचार्य भागवत ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया, और आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं यकृत प्लियांश,
रक्त वहे द्वे तयोर्मूलम यकृत प्लिहांच। और उन्होंने तो उदाहरण दिया, एक जगह रेफरेंस है, तो एक पेशेंट था, उस पेशेंट को उन्होंने कलेजी खिलाई, उसका जॉइंटिस ठीक नहीं हुआ, और जब उसको पचौनी खिलाई, आमाशय का एक टुकड़ा खिला दिया निचला वाला उबाल के, तो वो ठीक हो गया। तो वो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, हमारा जो भी आमाशय की व्यवस्था है, ग्रहणी की जो व्यवस्था है, उसमें नो डाउट पित्त का बहुत बड़ा रोल है। और आज यदि कल्पना करेंगे तो हम तीनों की कलाकली अध्याय बना देंगे। हम तो इवन 7 धातुओं की कलाकली अध्याय भी बना देंगे। हमें अपने बच्चों को उसकी आत्मा तक पहुंचाना है। हमें उसको बिल्कुल उसकी आत्मा तक पहुंचाना है कि हमें, हमारा पर्पज है, हमें दोषों की गणना करनी है। दोषों के आधार, इवन पंच महाभूतों का जो रोल है, तो बहुत ही एक चमत्कारिक रोल होता है। क्योंकि औषधियों की कल्पना में, जहां हम औषधि की कल्पना करते हैं, वहां यदि मुझे मालूम है कि प्राण वायु के साथ में कौन सा पित्त ज्यादा नजदीक है, कौन सा कफ ज्यादा नजदीक है, तो हम इन तीनों का करेक्शन कर सकते हैं चिकित्सा उसी ड्रग से। और जहां तक चिकित्सा वाला जो पार्ट थोड़ा छूटा, उसमें हमने बस्ती को नहीं ध्यान दिया। बस्ती है तैल वात परशमा नाम श्रेष्ठा बस्ती, तो बस्ती के बारे में तो चिकित्सार्ध बस्ती, चिकित्सा मयिक बस्ती, क्षीण शुक्र बाजी करोति, स्थूल कर्षयति, कृस ब्रैंगयति, वय स्थापयति इति बस्ती। तो बात के लिए, बात की जो स्थान बता दिए, उसकी चिकित्सा करना है बस्ती के लिए, और श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो उससे हम कितने व्याधियों को करेक्ट कर देते हैं। चलिए सर, अब ये तो बहुत अपन कलाकली। थैंक यू वेरी मच। सच में यही कहना पड़ेगा कि शिक्षक हो तो आप जैसे, जो ग्रंथस्थ ज्ञान को, इसको बहुत ही प्रयोगात्मक रूप में लाके और बोधगम्य बनाए। और वैद्य पारुल जी ने जैसा बस्ती के बारे में चर्चा की थी, वही वो बात भी आपने साथ के साथ स्पष्ट कर दी। अब क्योंकि समय पूरा हो चुका है और हम समझते हैं कि हमारे पास केवल वैद्य प्रेमशंकर जी मौजूद है, तो हम आज उन्हीं के आशीर्वचनों के साथ में आज के कंक्लूजन के जाएंगे। हाँ, इस बीच उनके आशीर्वचन से पहले डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी, अगर आपने पूरा डिस्कशन लिया है, आप कुछ अनुमान प्रमाण के बारे में और एकाध वाक्य में कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, क्योंकि अभी हैं प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। यस जी सर। हाँ सर। जी, ओवरऑल डिस्कशन में आपके ऊपर जो जी, अभी आप विद्वानों के बीच हूँ, तो अब ज्यादा कथन उचित नहीं है। अब हम नहीं आप अभी हमारे गुरु, आप क्योंकि हमारे प्रस्तोता हैं, आज आप हमारे प्रेजेंटर भी रहे हैं। जी जी सर। अब चेहरा नहीं, पांडे सर तो आप समापन के लिए तैयार बैठे हैं, समापन के लिए वो तैयार बैठे। मैंने ये चाहा कि चूंकि आपने सुना, आपने अपने ऊपर कमेंट और प्रशंसा दोनों सुनी, तो उस स्थिति में अब अरविंद बाबू वो हमारे क्या है, अतुल बाबू वार्ष्णेय जी आपके यहाँ ही हैं, और सब अपने साथी लोग उधर हैं। तो कुछ आप कहना चाहें? तो मतलब ऐसे ना, वक्ताओं को 1 आध मिनट का समय फीडबैक के लिए मिलता है, उस परंपरा में, उस ट्रेडिशन में, उस प्रोटोकॉल में आपसे कहा कि आप कुछ कहें तो अच्छा है। अच्छा सर, अब मैंने सीपी शर्मा जी का लेक्चर सुना सर, बात कलाकली के बारे में कुछ मेरा भी ज्ञानार्जन हुआ है। बहुत कुछ हमने पढ़ा उसके बारे में, और थोड़ा बहुत सर का सुन के और भी थोड़ा सा ज्ञानार्जन हो गया हमें। और आप लोग सभी लोग बड़े हैं, अग्रज हैं, और आप लोग जैसे जैसे निर्देश मिलेगा वैसे ही थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा सर। आप कॉन्टेक्ट में डाल दीजिए अपना चैट बॉक्स में, मैंने ज्यादा प्रस्तुत नहीं रोज किया। जुड़ा करिए, आप अपना रोज जुड़ा करिए, और जब भी कभी हम चाहेंगे तो आपको फिर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम प्रार्थना करेंगे वैद्य प्रेमशंकर जी के। आपके विचार तो सारे मिले, विचार नहीं, आप तो आशीर्वचन देके आज के चरक जयंती महोत्सव के आज के दिन का कार्यक्रम का आप समापन अपनी तरफ से अपने आशीर्वचन से करने की कृपा करिए। वैद्य प्रेमशंकर जी, स्वागत है, नमस्कार। यदि मैं आप फोन पर थे,
तो बेटे से बात कर रहे थे, उस जी, दौरान जी, जी। मैंने अपना विचार रख दिया था। अच्छा, और फिर से मैं एक बार फिर दोनों ही वक्ताओं को और जिन लोगों को कमेंट आए, प्रोफेसर रामदास जी, उनसे तो मैं आग्रह करूंगा कि वो हर दिन कार्यक्रम में जुड़े रहें। जी, यद्यपि मैं 2 दिन शायद नहीं जुड़ पाऊंगा, किसी विशेष कारण से बाहर जाऊंगा, लेकिन उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो रोज जुड़े। बहुत ही अच्छा उनका कमेंट लगता है और उनका ज्ञान खासतौर से संस्कृत का और शास्त्र का, दोनों वो ही ज्ञान। आयुर्वेदाचार्य न होके भी आयुर्वेदज्ञ हैं। आप देखिए ना। बहुत अच्छा। नहीं, उनका संस्कृत का जो ज्ञान है वो बड़ा अच्छा है। किस विषय में है वो संगीता में है, मौलिक संस्कृत में, संस्कृत के आचार्य हैं। संस्कृत में? हाँ, तभी तो। जी। तभी इतना अच्छा जो उनका ज्ञान है संस्कृत का, वो जी। हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी। जी। तो आयुर्वेद बहुत मई अच्छा है। संस्कृत बोलते हैं सर। नहीं नहीं, हाँ। बहुत अच्छा है। तो हम लोगों का तो अभ्यास छूट गया संस्कृत का, वो नाड़ी देखने में ही सब गायब हो गया। लेकिन हमको बड़ा अच्छा चलिए। लगता है, जो भी संस्कृत में थोड़ा अभ्यास है जिसका, वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए। और अच्छा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद सर लेता हूं आपका। कि अब- और प्लेटफॉर्म बैक टू डॉक्टर पवन शर्मा जी फॉर द बहुत बहुत Formal धन्यवाद closure. सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार सभी का।